Good morning, students. Once again, your assistant teacher Pradeep Shukla here. Student, today we start our last topic of this chapter, resource and development. Last time we have seen about land resource. Today, student will see soil resource. Soil is a very important resource. As we know, student, soil मिट्टी ठीक है. दूसरी बात student, as we know, soil is a very important resource and it is also known as a renewable resource. It takes lots of time for renewal of a soil, but it is also a renewable resource. दूसरा, as we know students, as you know, soil it is also a medium of we can say growing plants and different organisms. आपने देखा मिट्टी में ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं. तो कहीं ना कहीं सॉइल का एक माध्यम है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और कहीं ना कहीं वी कैन से इन सब चीज़ों को उगाने के लिए. दूसरी अगर बात हम देखें स्टूडेंट्स, एज वी नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल फॉर्मेशन, as we know, it's a renewable process, but it takes lots of time to form a 1 centimeter of soil. As we can see, it takes millions of years, yeah, hundreds and hundreds of years to just form a 1 centimeter of soil. Moving ahead, students, is very important. Soil is formed with the help of various we can say climatic features and natural features. As we can say relief features, parent rock, bed rock, climate, different microorganisms, and as well as we can say running water. These are all the various factors which are responsible for the formation of soil. दूसरा, also we'll understand on the basis of formation, texture, age, color, quality, importance. The soil has been classified into various types. First, we'll understand alluvial soil. As we know, alluvial soil, student, alluvial soil, it is available everywhere. It is found everywhere. दूसरा, alluvial soil is the most important soil which is found on this plain areas. तीसरा, alluvial soil is formed with the help of various rivers. Like we have Indus River, we have Brahmaputra River, and we have Ganga River. दूसरा, Indus we can say alluvial soil areas are more fertile, are more densely populated compared to other areas. क्योंकि जो alluvial soil है that is suitable for all type of ज़्यादातर croppings alluvial soil पर ही हो पाती है. दूसरी बड़ी बात students is very important. The alluvial soil consists of different types of sand and clay. अब जहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पे alluvial soil मिलते हैं that is very we can say बड़े-बड़े particles मिलते हैं, और जैसे ही we can say नीचे इलाके में वही soil मिलते हैं plain areas पर, तो कहीं ना कहीं वो particles बहुत छोटे होते हैं. दूसरी बड़ी बात स्टूडेंट्स, जो alluvial soil है that is divided into two types. One is खदार and बांगर soil. As we know, if you see in the book students, alluvial soil is we can say खदार is the old alluvial soil and बांगर is the new alluvial soil. खदार is more fertile than the, if you see in the book, it is more fertile particles and it is more we can say fine particles and fertile than बांगर soil. बताने का मतलब ये है कि खदार and बांगर are the components of alluvial soil, पर उसमें से ज़्यादा we can say अच्छा कौन सा रहता है, if you see खदार soil, because it is more fertile compared to बांगर soil. दूसरी बड़ी बात, जो alluvial soil है normally if you see in the book, they are found in such soils are more common in duars, chaws and terai areas. Third important point is alluvial soil is more fertile and it contains more quantity of, if you see in the book, potash, phosphoric acid and lime. दूसरी बड़ी बात, as we know, there are different types of crop which are grown in the we can say in the alluvial soil. Like if you see in the book page number 8, it is also used for cropping of pulse crop, wheat, paddy and etc. तो बताने का ये मतलब है कि ज़्यादातर जो क्रॉपिंग होती है that is done with the help of alluvial soil. दूसरा, it's very important. Moving ahead, we'll understand black soil which is also known as rigor soil. And black soil, as we know student, it is suitable for growth of cotton, bananas, तो इसके लिए ज़्यादा suitable होता है black soil. दूसरी बड़ी बात, जो black soil होता है normally it is found in the plateau regions, और plateau regions में कैसे मिलते हैं, कहना इसका है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो black soil है that is formed with the help of the lavas. जो वैल्केनिक इरप्शन से जो लावा वगैरह निकलते हैं उसके जो एशेस होते हैं उससे जो रिएक्शन होता है that helps in the formation of black soil.
दूसरी बड़ी बात स्टूडेंट रिपीट से ब्लैक सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्लेटो। दूसरी बड़ी बात जो ब्लैक सॉइल होता है दे आर इन क्ले, दे आर उनका जो वी कैन से प्रॉपर्टीज होता है दे आर इन क्ले कंपोनेंट। और दूसरा इट ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ वाटर, और जो पानी वी कैन से जब सूखा पड़ता है, जब धूप पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक सॉइल जहाँ रहता है वहाँ पे ज़मीन पर क्रैक्स आ जाता है, और क्रैक्स आने की वजह से बारिश होती है तो पानी अंदर बह जाता है। इससे क्या होता है, ज़मीन में हमेशा दलदल की तरह मिट्टी थोड़ा एकदम चिपकी चिपकी रहती है, क्ले टाइप रहती है कंपेयर टू अलुवियल सॉइल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। एज वी नो रेड एंड येलो सॉइल इज नॉर्मली फाउंड विद द हेल्प ऑफ द वी कैन से क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स। और ज़्यादातर जो रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलते हैं, इट इज फाउंड इन दी एरियाज विच हैव वेरी लो रेनफॉल, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट लाइक वी हैव उड़ीसा। ठीक है। दूसरा इफ यू सी लाइक इट आल्सो हैव सम पार्ट्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। लाइक रेड एंड येलो सॉइल में ज़्यादातर क्या रहता है, दे हैव आइदर इग्नीशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आगे बढ़ते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट से आपको नाम समझ आया, ब्रिक सॉइल, इट्स आल्सो नोन एज ब्रिक सॉइल व्हिच इज इन मडी कलर। आपने इटियोपिया कलर देखा होगा एंड दैट्स व्हाई उसी कलर का होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेटराइट सॉइल। दूसरा दिस इज द रिजल्ट द लेटराइट सॉइल डेवलप्स एरिया विद हाई टेंपरेचर एंड हैवी रेनफॉल। द लेटराइट सॉइल डेवलप कहाँ होता है, जहाँ पर हाई टेंपरेचर रहते हैं और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बड़ी बात, लेटराइट सॉइल आर नॉर्मली फाउंड इन दी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। दूसरी बड़ी बात जो वी कैन से लेटराइट सॉइल है, दे आर गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ कैश्यू नट्स if you see in the books, and also for growing rubber. This is suitable for this type of cropping. Next we have arid soil. नाम से ही आपको लगेगा arid soil, the soil which are normally found in the desert areas are known as arid soil. As we know, arid soil में कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और बालू भी बहुत ज़्यादा होता है, सैंड भी बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अपर लेयर रहता है सॉइल का वो बहुत कड़क होता है कंपेयर टू लोअर लेयर। दूसरी बड़ी बात, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है क्योंकि एरिड एरियाज में ज़्यादा बारिश नहीं होती। दूसरी बड़ी बात, एरिड सॉइल कहाँ पे ज़्यादा फाउंड होता है, इट इज वेस्टर्न राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मीन्स द सॉइल विच इज फाउंड इन द हिली एरियाज एंड द माउंटेन रीजन्स आर नोन एज फॉरेस्ट सॉइल। मूविंग अहेड, द सॉइल टेक्सचर वेरी फ्रॉम माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। लाइक बताने का मतलब ये है, जो फॉरेस्ट सॉइल होता है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो माउंटेन एरियाज में जहाँ पर स्नो वगैरह कम पड़ते हैं तो वहाँ की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू द सॉइल विच आर फाउंड इन दी स्नोई एरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मीन्स जो वी कैन से जो जमीन की परत होती है वो खराब होना, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। और ये होता कैसा है, द डिमिनिशन ऑफ द सॉइल कवर and subsequently washing down is known as soil erosion. जैसे मट्टी ज़्यादा बारिश होती है, मट्टी बह जाती है, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, आपने देखा खेतों के बगल में ऐसे मेड़ बनाए जाते हैं। मेड़ क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपकी मट्टी दूसरे खेत में न जा पाए, आपकी मट्टी सेव हो सके, ताकि जो आप सॉइल इरोजन ना हो सके। अगर मट्टी यहाँ से जाएगी तो वहाँ हो जाएगी, वहाँ से आएगी तो यहाँ हो जाएगी, बट मट्टी बाहर नहीं जाएगी। That is known as soil erosion. आगे बढ़ते हैं। Like soil erosion होता क्यों है? Because of the various activities like overgrazing, deforestation and various activities which are undertaken by the government. इससे कहीं ना कहीं हम जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, what do you mean by gullies? As we know, आपने देखा है कहीं कहीं पानी बहुत तेजी से बहता रहता है और जब कुछ दिन तक वहाँ से पानी बहता है तो एक रास्ता बन जाता है, that is known as gullies. दूसरा bad land, the land which is unfit for cultivation, that is known as bad land. ऐसे land जिस पर हम cultivation नहीं कर सकते, या तो running water की वजह से या और बहुत सारे climatic features की वजह से, that type of land are known as bad land. Then we have sheet erosion. What do you mean by sheet erosion? Means the continuous flow of water at a particular large place, that is known as sheet erosion.
जैसे अब कहीं से जोर से पानी गिर रहा है एक जगह पर, तो उससे जगह वहाँ की ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। खराब कैसे हो जाती है? सैंड वगैरह वहाँ से वाइप आउट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लैंड जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल रहते हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, वो वॉश आउट होने की वजह से दैट रिजल्ट्स इनटू शीट इरोजन। अब ये सब चीज़ों को हम कैसे वी कैन से इफ यू सी इन द बुक, अभी जैसे आपने देखा पहाड़ी एरिया वगैरह में प्लानिंग कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइन। कंटूर लाइंस क्या है? ताकि इससे क्या होगा, इफ यू सी इन द बुक प्लविंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अब कंटूर लाइन में स्लोपिंग करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा पानी नीचे बहने का चांसेस रहेगा वो बहुत कम होगा। आपने पहाड़ी इलाकों में देखा है लोग टेरिस फार्मिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं? देखा आपने ऐसे ऐसे बाहर बनाए जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे खेती की जाती है, पहले ऊपर रहेगा फिर नीचे, देखा होगा आपने बाहर से काट के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि पानी लैंड स्लोपी ना हो, अगर स्लोपी होगा तो कहीं ना कहीं पानी बह जाएगा। दूसरी आगे बात हम देखते हैं, स्पेशली इन द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरियाज भी है शेल्टर बेल्ट्स। अब डेजर्ट एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स क्यों है? ताकि जो लैंड है, जो वी कैन से कल्टिवेबल लैंड है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ वी कैन से शेल्टर बेल्ट्स। इससे जो तेज हवाएं बहती हैं या जो सैंड्स बहकर आते हैं, कहीं ना कहीं वो लैंड पर नहीं आएंगे। लैंड पर ना आने की वजह से ऊपर की परत खराब नहीं होगी, और ऊपर की परत नहीं खराब होगी तो कहीं ना कहीं लैंड उपजाऊ या फर्टाइल बना रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू plant more and more trees in the desert areas if you are doing any type of vegetation there. Thank you students, we have completed with this chapter and it's very important students, जितना भी MCQs है इसमें से करिएगा, वन लाइन आंसर्स, बिग आंसर्स भी करिएगा। जो नहीं आएगा टॉपिक विल डिस्कस, मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें से जो भी प्रॉब्लम होगा आप हम डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर ऑल्सो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।